Yeah, very good afternoon to the all students. Those who are listening this IBSCIO 2 mock interview. I am here with one of my student to practice for the IBSCIO 2 mock interview. Okay, just listen the mock, and if you are interested for the mock interview guidance classes, my number is 7503235358. Just get in touch with me and take a proper guidance. Okay, beta, start. May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay. First of all, briefly introduce yourself. Thanks for giving me this opportunity. My name is Divya Singhal. I was born in Delhi. I have done my schooling from Delhi Government Schools and have graduated from IGNOU. Apart from this, I have a diploma in medical lab technology and having 2-year experience as lab technician in private pathology lab. I like to do cooking and DIY crafting in my leisure time. We are 4 members in our family. My father is working in Bharat Bhushan Private Limited Company. My mother is homemaker and having a younger sibling. We live in East Delhi. Okay. You are basically from Delhi itself. Your native place is Yes. Delhi. Yes. Okay. Delhi is nowadays popular related to the her new CM. Yes, sir. Who is the new CM of Delhi? Honorable CM, Madam Atishi. Okay. Your birthplace is Delhi, so that I will start it from Delhi, and then we will move forward to the other questions. Okay, sir. Okay. In which place you are living in East Delhi? So in Krishnanagar. In Krishna Nagar. Okay. Delhi is also known as? In ancient time, Delhi is known as Indraprastha. Delhi is known as Indraprastha. Very good. Beta, we all know that recently or each and every month it is in the news that due to the smog from the UP, Rajasthan and Haryana, the air pollution of Delhi is going to be worst due to the stubble burning, as well as if Diwali is come soon. So you know about this. It is in the news recently. Yes, sir. Tell me something about that. So in September or mid of October span, Delhi is polluted due to stubble burning from the region of Punjab and Haryana, and इन इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक्शंस भी लिए जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट से, जैसे कि ग्रैब जो है वो हम लगा देते हैं. इसमें ऑड इवन व्हीकल्स को ऑल्टरनेट डेज पे चलाया जाता है. Good. इससे Very जो good. है पोल्यूशन जो है उसमें थोड़ी सी कटौती होती है. Okay, you are here for the IB interview. यस सर. Okay. IB का headquarter कहाँ है? Where is the headquarter Sir, of New IB? Delhi. New Delhi. Okay. What is the tagline and who is the head of IB? So tagline of IB is Jagratam Aharnisham, that means always alert, and chairman is Honorable IPS Tapan Dekha ji. Tapan Dekha ji. Very good. Recently he got selected. Okay. Tell me something about Intelligence Bureau. Tell me something about IB. So Intelligence Bureau deals with internal security. Internal security is an act which keeping peace in the sovereign state and dealing with the terrorist attacks in that state. Okay. Intelligence agency that is work apart from internal security. Internal security जो बाहर के लिए देखता है वो क्या नाम है उसका? Sir, RAW. रॉ का फुल फॉर्म पता है आपको? The Research and Analytical Wing. Research and Analysis Wing. Good. Very good. You know that the two term, it is very popular, Naxalism and terrorism. Yes, sir. What is the difference between Naxalism and terrorism? The terrorism is a planned systematic organization which commit terror attack in the civilian district, but Naxalism is against the government. Okay. This is not attack of civilian. ओके बेटा, किसी क्वेश्चन का आंसर अगर इंग्लिश में नहीं देने मन है, आप उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आप हिंदी में दे सकते हैं. लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर. ओके. आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सुना है?
यस सर। पहले इसका डेफिनेशन दे दीजिए और अभी ये न्यूज़ में क्यों है ये बताइए। सर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो था 1958 में आया था, ये एक स्पेशल पावर ग्रांट करता है इंडियन आर्म फोर्सेस को टू मेंटेन पीस इन द डिस्टर्ब्ड एरिया। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज में इसको एक्सटेंड किया गया है। इसको एक्सटेंड किया गया है, वेरी गुड। 2-3 नक्सल इफेक्टेड स्टेट्स का नाम बताएंगे। सर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आपने उड़ीसा का नाम लिया, हमारी राष्ट्रपति का क्या नाम है? मैडम द्रौपदी मुर्मू। ओके, वो उड़ीसा में कहाँ से हैं? मयूरगंज। मयूरगंज। ओके। भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे रह चुके हैं रामनाथ कोविंद। यस सर। उनकी अध्यक्षता में अभी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बनाई गई है। यस सर। व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन बेटा? सर इसमें जो है सारे स्टेट्स का सीएम वाले जो इलेक्शन होते हैं और लोकसभा के इलेक्शन सबको एक साथ ही कंडक्ट कराने के लिए इसको स्कीम को लाया गया है, ताकि जो है हमारा जो इलेक्शंस में होने वाला खर्च था उसको जो है कम से कम किया जा सके। ठीक है। आपने अभी देखा है, अभी तिरुपति वो लड्डू न्यूज़ में है। मैं कुछ करंट के Yes. क्वेश्चंस पे हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। तो ये क्यों न्यूज़ में है आप बताएंगी? तो उसमें एफएसएसआई की रिपोर्ट के द्वारा ये पाया गया था कि उसमें जो था बीफ ऑयल पाया गया था, जो कि डिवोटीज के सेंटिमेंट्स और इमोशंस के अगेंस्ट था। सेंटिमेंट एंड इमोशंस के अगेंस्ट था। ठीक है। व्हाट इज साइबर क्राइम बेटा? आप जानते हो साइबर क्राइम क्या है? यस सर। बताइए मुझे, व्हाट इज साइबर क्राइम? तो साइबर क्राइम एक ऐसी टेक्निकल टर्म है जिससे कि फॉरेन कंट्रीज में या फिर विद इन अ स्टेट भी हम दूसरे कंट्री के सॉफ्टवेयर, इंटरनल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर पर अटैक करते हैं और इंफॉर्मेशन रीच करते हैं। दैट इज नोन एज साइबर दो क्राइम। टर्म बोल रहा हूँ, स्मिशिंग, एस से स्मिशिंग और फिशिंग। क्या है ये? दोनों को डिस्क्राइब कीजिए इंडिविजुअली। तो स्मिशिंग जो हमारा जो डाटा होता है उसको हैक कर लिया जाता है हमारे कंप्यूटर से, और फिशिंग जो होता है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पैम। स्मिशिंग मैसेज के थ्रू, स्मिशिंग इज थ्रू नॉर्मल मैसेज, और फिशिंग में डेटा जो है वो पेन आपका क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, फिशिंग में डेटा को लिया जाता है। हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सो ऑनरेबल डीवाई चंद्रचूड़ जी। ओके, नए कौन बनने वाले हैं बेटा 51st? मिस्टर संजय कुमार जी। वेरी गुड। हु इज एमएचए? सुने हो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? यस यस इसके बारे में कुछ पढ़ा है एमएचए के बारे में? यस सर, थोड़ा सा। जी बताइए जो पढ़ा है। सर होम अफेयर्स जो है बेसिकली हमारा ये मिस्टर ऑनरेबल अमित शाह जी के अंडर आता है, एंड इसमें जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं वो सब हमारे इसी के अंडर आते हैं, जैसे सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुड। एनआईए, एनएसए। ओके। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है अभी, हमेशा न्यूज़ में रहते हैं? ऑनरेबल मिस्टर अजित डोभाल जी। ओके। क्वाड की समिट के लिए मोदी जी अभी किसी दूसरे देश गए थे, समिट के बाद इंडिया आ गए। क्वाड समिट कहाँ हुआ था? तो यूएसए में। यूएसए में हुआ था। वेरी गुड बेटा। सीए सुने हो, सिटीजनशिप Yes. अमेंडमेंट एक्ट? अमेंडमेंट, यस सर। इसके बारे में बताइए। सर ये एक्ट हमारा जो था वो फॉरेन इस्लामिक कंट्रीज से लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को इंडिया में सिटीजनशिप देने के लिए था बाय नेचुरलाइजेशन, जो हमारे 31 दिसंबर 2014 से पहले यहाँ पे रेजिडेंट हैं, उन सबको नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दी जाएगी। एनआरसी सुना है? यस सर। एनआरसी बताइए। सर दिस इज नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। इसमें जो है टोटल पॉपुलेशन से इलीगल इमिग्रेंट्स को एलिमिनेट करना था, जिससे कि हमारी प्योर रेजिडेंट इंडियन पॉपुलेशन का पता चल सके। अगर आपको याद हो, आप ईस्ट दिल्ली से बिलोंग भी करती हैं,
कोविड शुरू होने के जस्ट पहले 2020 के जनवरी या फरवरी के लास्ट में दंगे हुए थे, कुछ याद है आपको? यस सर। कुछ उसके बारे में पढ़ा है? जहांगीरपुरी में, आपके इस तरफ हाँ सीलमपुर जी, वगैरह में भी जाफराबाद, गोपालपुरी साइड भी। क्या था ये, क्या 29। रीज़न था, क्यों हुआ था, कुछ आपको पता है? तो ये बेसिकली सीएए के ही अपोजिशन में थे, हम्म। क्योंकि मतलब लोगों को ऐसा लगा था कि ये जो है इंडियन मुस्लिम्स के अगेंस्ट है, तो इस वजह से उन लोगों ने जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस तरह से प्रोटेस्ट किया था, जो कि थोड़ा वायलेंट हो गया था। आप दिल्ली में रहते हो, यहाँ पार्लियामेंट अटैक हुआ था, यस सर। उसके बारे में कुछ बताएंगी? 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था। ये बेसिकली एलईटी, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के द्वारा करवाया गया था। इसमें एक अफजल गुरु पर्सन था जो बेसिकली पूरे उसमें कनेक्टेड था। 5 टेररिस्ट को उन्होंने दिल्ली में, कश्मीर से दिल्ली में लाके उन्होंने टेररिस्टिक अटैक को अकर किया था। अभी नया पार्लियामेंट बना है, यस, उसके बारे में कुछ पढ़ा है आपने? तो थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, नए पार्लियामेंट के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मुगल गार्डन, जो कि आम पब्लिक के लिए साल में 2 बार खोला जाता है, इसका नाम पहले मुगल गार्डन था, यस, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर है। अब इसका नया नाम क्या है बेटा? तो अमृत उद्यान। अमृत उद्यान इसका नया नाम है। कर्तव्य पथ अगर मैं बोलूं तो इसके बारे में कुछ बताएंगी? तो ये पहले राजपथ हुआ करता था, उस वहाँ को कहा जाता था कर्तव्य पथ, जो कि एक रोड है जो बेसिकली इंडिया गेट। हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, हाँ, हाउस ऑफ प्रेसिडेंट से इंडिया गेट की तरफ जाती है। यहाँ पे जनवरी परेड भी होती है। इसका नाम करके नया कर्तव्य पथ कर दिया। इसको कर्तव्य पथ वाले आंसर को दोबारा से एक बार रीचेक कीजिएगा, ठीक है। आप मुझे ये बता दीजिए बेटा कि आपके पापा क्या करते हैं? तो वो शेयर मार्केट में केवाईसी एग्जीक्यूटिव है। शेयर मार्केट में केवाईसी एग्जीक्यूटिव है। शेयर मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सर सेबी। सेबी। सेबी की हेड है कोई लेडी? यस सर, मैडम माधुरी बुच। ओके, माधुरी बुच अभी न्यूज़ में थी बेटा कुछ समय पहले, 1 महीने से या 15-20 दिनों से। उनके बारे में 1-2 लाइन कुछ पढ़ा है क्या आपने, सुना है? यस, यस सर। बताइए। तो उन पे ऐसे एलिगेशंस थे कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के उसमें जो था उनके ऊपर एलिगेशंस थे, बट अभी वो प्रूव नहीं हो पाए हैं, तो ये बस एलिगेशंस ही हैं। एलिगेशन किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि फिलहाल हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? मिस्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। ओके, आपने अपना ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करा? सर 2020। 2020 में। जैसे कि आपके बायोडाटा फॉर्म में लिखा है, आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, लास्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स याद हैं? क्या क्या था लास्ट ईयर में? यस सर, तो उसके बाद मैंने एमएलटी में भी परस्यू किया था, तो रिसेंटली मेरी वही क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ओके, एमएलसी का फुल फॉर्म दोबारा से बताइए। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ओके, आपने कुछ कहा कि आपको फॉरेंसिक वगैरह में भी कुछ नॉलेज है। फॉरेंसिक वर्ड को डिफाइन कीजिए। तो forensic is a branch of science in which we deal in anatomy of body of the victim or accused. ओके बेटा, आप ये कंप्लीट करके आप अपने फील्ड में क्यों नहीं जा रही हैं? आप इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि एक टफ जॉब है गर्ल्स के लिए, आप यहाँ क्यों आना चाहती हैं? So because I have a desire to serve the nation, that's why I choose first medical line, and then one of our teachers told me about this government services in which we direct serve in the guidance of the government to the nation. So that's Okay. why I want to. ये तो नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते थे, तो आप फॉरेंसिक वगैरह की हैं, तो आप उस साइड अपने फील्ड में जाइए। आप उसका यहाँ क्या नॉलेज है और आप यहाँ क्यों आना चाहती हैं? So basically, this course has developed me or inherit me some special qualities or traits like coordination, hard work, patience, calm,
I think this will help me in this bureau to work with the multiple organization and coordination between police and departments. So I think I can work within this. Okay. Okay. What is your quality so that we will select you? So first is the patience, analytical thinking, and deal with the situation according to the situation, adaptability, courage, self-motivated. Okay. What is your hobby? So my hobby is cooking and DIY crafting. कुकिंग, DIY क्राफ्टिंग. ओके बेटा, हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे. गौर करना, अगर वो इंग्लिश में पूछते हैं, तुम इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाती हो तो हिंदी में मूव कर जाना. लेकिन जब वो हिंदी में पूछेंगे किसी का सवाल का जवाब तो तुम हिंदी में ही देना. बेटा, जैसे अगला सवाल, हम आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी कर देंगे. अगर मान लीजिए ये पैन इंडिया जॉब है, ठीक है, शुरुआत में दिल्ली करते हैं, लेकिन आगे चल के कहीं हम करते हैं या आसपास कहीं भेजते हैं या फील्ड में आपको जाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को एज ए गर्ल कैसे मैनेज करेंगी? सर हाँ, मेरे को पता है कि ये पैन इंडिया जॉब है, बट आई नो आई कैन अडेप्ट विद द सिचुएशन. In our hospital internship, we are trained like we are in different atmosphere within the departments, coordination. I have learned this situation before, so I can adapt the situation. जोजिला पास सुना है? Yes, sir. कहाँ पे है ये? लद्दाख एंड कश्मीर के बीच में. लद्दाख और कश्मीर के बीच में है, जिस दूसरे देश से टच नहीं करता है ये. नहीं सर, बेसिकली ये लद्दाख और कश्मीर के बीच में. LAC और LOC दोनों का फुल फॉर्म बताइए. LOC is a line of control. It is between the Pakistan and India, and LAC is a line of actual control जो इंडिया और चाइना बॉर्डर के बीच में. मैकमोहन लाइन किन दो देशों के बीच है? सर इंडिया और चाइना. रेड क्लिफ लाइन? पाकिस्तान एंड इंडिया. इजराइल जो कि न्यूज़ में रहता है, इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है? बहुत पॉपुलर है. तो मोसाद. इसके बारे में कुछ पढ़ा है क्या बेटा? सर अभी रिसेंटली लेबनान में अटैक हुए थे, पेजर अटैक, तो वो जो है ऐसा मानने में है कि ये मोसाद इजराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसी के द्वारा करवाए गए थे. पेजर अटैक के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा क्या आपने? कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ देखा था? यस सर. बताइए मुझे. तो लेबनान में ये एक मिलिटेंट ग्रुप है हजीमुल्ला करके, उसके अगेंस्ट इजराइल का ये अटैक था. पेजर इज बेसिकली एक डिवाइस होता है जैसे फॉर मैसेजिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग्स. ये काफ़ी ऑब्सोलेट डिवाइस है जो कि अब ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है. तो हजीमुल्ला ने इस चीज़ को इसलिए अभी तक रखा था ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर पाए, क्योंकि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है. तो मोसाद ने क्या किया था कि ये बेसिकली ताइवान से इंपोर्ट होते थे उनके यहाँ, तो उन्होंने ताइवान में ही अपने कुछ इंजीनियर्स वगैरह के थ्रू उसमें एक डिवाइस लगाया गया था और उसकी बैटरी के थ्रू ही उसमें विस्फोट हुआ था, और वो भी सबको एक साथ ही एक कोड के द्वारा, तो सारे ही ब्लास्ट हो गए थे एक साथ. गुड. व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट? तो वुमेन एम्पावरमेंट वुमेन को हर फील्ड में एक्सेल करने के लिए एक स्कीम कह सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, ताकि वुमेन भी हमारी जो है इंडिया में आगे आ सके, उनको डिप्राइव फील ना कराए और जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको इक्वली दी जाए. वेरी गुड, वेरी गुड. कोलकाता अभी न्यूज़ में था कुछ दिनों से, कंटिन्यूअस अभी भी न्यूज़ में है. एक दो लाइन ब्रीफ में. तो वहाँ पे एक लेडी डॉक्टर जो थी ऑन द ड्यूटी थी, वहाँ पे उनके साथ गैंग रेप हुआ था. तो उसके अगेंस्ट जो है पूरे नेशन में प्रोटेस्ट किया जा रहा है बाय द डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टाफ. एंड एक्यूज जो है वो गिरफ्तार भी हो गया है एंड उस पे केस वगैरह चल रहे हैं. सिंगल बंदा ही था, ऐसा कोई गैंग नहीं था, सिंगल बंदा ही था. भले चीज़ें बाहर आई हैं नहीं आई हैं जो भी हैं. ओके. वेस्ट बंगाल की CM और गवर्नर कौन है? CM मैडम ममता बनर्जी एंड
आनंद बोस, मिस्टर आनंद बोस गवर्नर है। ठीक है। आप दिल्ली की रहने वाली हैं बेटा। एनसीआर का फुल फॉर्म बताइए। तो नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है। एक क्वेश्चन, कोई भी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपको कोई टिप मिला, ओके, आप आपकी पोस्टिंग मान लीजिए हम करते हैं आज़ादपुर के साइड में, क्योंकि ये फील्ड का जॉब है, यहाँ ये भी देखना होता है कि कहाँ कहाँ इंटरनेट एसेस हो रहा है, कोई इंटरनेट का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। आपको कोई टिप मिला कि आपको जाना है यहाँ पर, ये लोग बैठे हैं, तो किन किन सावधानियों का प्रिकॉशन लेंगी कि कोई भी जान माल की हानि ना हो, आप उनको पकड़ सकें अपनी टीम के साथ, या आप वहाँ जा सकें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब ऐसा लोकल ड्रेसअप करेंगे ताकि हम उनमें घुल मिल सके, एंड फिर हम एक नेटवर्क बनाएंगे, बेसिकली लोकल नेटवर्क, ताकि जो है लोगों को ऐसा ना लगे कि हम बाहर से आए हुए हैं। और फिर उनको ट्रैक करेंगे, और एक मतलब हम सिविलियंस को प्रिवेंट करेंगे, मतलब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, देन फिर उनको अटैक करेंगे। ठीक है। आप अपना करियर इस जॉब में कहाँ देखती हैं बेटा आने वाले समय में? इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना जॉब में अपना करियर कहाँ देखती हैं? Sir, I will do my best in this job and excel my skills. And इसका आंसर हम लोग ऐसे दे सकते हैं सर कि शॉर्ट टर्म में मेरा ये एम होगा कि मैं फ़िलहाल जैसे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो, ट्रेनिंग के टाइम में मुझे जो भी सिखाया जाए मैं ट्रेनिंग के टाइम में वो सीखूं, और जो चीज़ों पे मुझे स्पेसिफिकली ध्यान देने के लिए बताया जाए मैं उन चीज़ों पे ध्यान दूं, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे से आगे बढ़ते जाऊं और देश की सेवा करूं। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि आपने सुना होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है, और रिसर्च एनालिसिस विंग जो है रॉ इंडिया के बाहर के सुरक्षा को देखता है। ठीक है। तो 2-3 ऐसे बॉर्डर नेशंस इंडिया के जिसके साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चलता है। so India and China, and India Pakistan, India Myanmar, and Bangladesh. बांग्लादेश वगैरह अच्छे, ठीक है। म्यांमार के साथ भी ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया चाइना हो गया आपका, और इंडिया पाकिस्तान हो गया। ठीक है। आप मुझे बताइए दिल्ली, क्योंकि आपको कम से कम चौहद्दी पता होनी चाहिए, कौन कौन सा स्टेट का बॉर्डर दिल्ली से टच करता है? सर हरियाणा, राजस्थान। दिल्ली से राजस्थान टच नहीं करता बेटा। किस साइड से टच करता है राजस्थान से? चलिए आगे बढ़िए। हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये तो खैर हरियाणा के बाद आता है। पहले आप दिल्ली में हरियाणा टच करोगे तब उधर राजस्थान से आएगा। बेसिकली ये 2 स्टेट हैं, ठीक है, यूपी और हरियाणा, हाँ, जो कि दिल्ली को टच करते हैं। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, आप महिला हैं, मिस अतीसी मैम के पहले दिल्ली में 2 महिला सीएम रह चुकी हैं। यस सर। उन दोनों का नाम बताएं। सो लेट मैडम सुषमा स्वराज जी एंड लेट मैडम शीला दीक्षित जी। गुड। अभी भारत में एक जगह इलेक्शन हो रहा है और एक स्टेट में अक्टूबर में इलेक्शन होगा, दोनों का नाम बताएं। तो महाराष्ट्र में जो है वो अभी होगा। नहीं, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र में होगा और हरियाणा में होगा। हुआ कहाँ अभी इलेक्शन जहाँ पर रिजल्ट मतलब नहीं आया है, डिक्लेयर नहीं हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ इसलिए ले जा रहा था क्योंकि आप मुझे आर्टिकल 370 बताएं क्या होता है। व्हाट इज आर्टिकल 370? तो ये एक स्पेशल प्रोविजन एक्ट था, जम्मू कश्मीर को दिया गया था इन 1949, बट ये अब जो है एब्रोगेट कर दिया गया था 2019 में। इसमें ये था कि जो है जम्मू कश्मीर अपना खुद का मिलिट्री बेस, मतलब मिलिट्री पावर रख सकता है, और वो इंडिया के अदर स्टेट से डिसकंटिन्यू कर रहा था चीज़ें, और वो अपना ही अलग फ्लैग और अपना अलग नेशन खुद को उन्होंने अनाउंस कर दिया था, जिस वजह से कनेक्शन में दिक्कत हो रही थी, और फिर उसको एब्रोगेट कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे बेटा, उनका नाम पता है? राजा हरि सिंह।
राजा हरि सिंह वहाँ के राजा थे। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन। अगर हम आपको आज सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको क्या लगेगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और आप आगे दोबारा से इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए ट्राई करेंगी या नहीं करेंगी? तो मैं दोबारा से एक और बार ट्राई करूँगी, क्योंकि अगर आज सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं अपनी स्किल्स को, जो भी कमी रह गई है उस चीज़ को और इम्प्रूव करके दोबारा से कोशिश ज़रूर करूँगी। Okay beta. Guys, now I am going to give feedback to one of my student. If you are interested for the mock interview in English and Hindi, my number is 7503235358. I will ask you all HR related question, recent important current affairs related to internal security and others, your subject, your gap year, all question related to IB, all question related to internal security, those question which are asked in 2021 interviews and the chances will in this year interview. So if you are interested, text me for the mock interview and guidance. Thanks a lot. Jai Ma Saraswati.